Good morning class. Today we are going to discuss comparison between true solutions, colloidal solutions and suspensions. Students, earlier to this we have discussed about them separately. Broadly we have seen that as mixture was divided into two, that mixture may be homogeneous and it may be heterogeneous. Okay, and students, talking about homogeneous mixture, so they are true solutions. Okay, and heterogeneous may be further divided into colloidal solutions and it may be, you can say, suspension. Okay, so students, let us see what are the comparative point of them or what are the differences between them. Students, you can see here there is a table. In case of particle size, so in true solution the particles are less than 1 nanometer. In colloidal solution the particles are between 1 to 100 nanometer, and in suspension the particles are more than 100 nanometer. Overall you can assume that, students, in true solution the size of particles is very small. In case of colloidal it is of moderate range, it is of somewhat larger size in comparison to true solution, and in case of suspension they are of larger size. For this you can assume this structure. So you can see here in the case of true solution particles are very small, okay, and in case of colloidal solution they are of comparable size, and in case of suspension you can see the size is more than 100 nanometer. So this diagram are showing the different types of particles, okay, size of different type of particles. It may be of true solution, it may be colloidal, it may be suspension. Now students, talking about the second, that is visibility. So in case of true solution the particles are invisible. Again in colloidal also particles are invisible, but in case of suspension it can be seen through naked eye. आप उसको अपनी खुली आँखों से देख सकते हैं. Now students, talking about nature, as earlier said, true solution comes under homogeneous mixture and colloidal and suspension comes under heterogeneous mixture. Students, talking about their appearance, okay, that is how they are appeared. So true solution are transparent, okay, they are somewhat transparent, but colloidal solution are generally translucent. They are generally transparent but somewhat translucent also, and suspension are totally opaque. Now students, if we are talking about the setting of particle, अगर हम बात करें कि इनके पार्टिकल सेटल डाउन होते हैं कि नहीं, तो हम देखते हैं ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते हैं, ये ओवरऑल होमोजेनियसली अच्छे से मिक्सअप हो जाते हैं. अगर हम कोलाइडल्स की बात करें तो भी पार्टिकल्स सेटल नहीं होते. हम देखते हैं पूरे सॉल्यूशन में क्या है, वो पार्टिकल्स पूरी तरीके से क्या होते हैं, फैले हुए रहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं कि स्कैटरिंग फेनोमेना हमको देखने को मिलता है. और अगर हम बात करें सस्पेंशन की तो ये क्या हो जाता है, सेटल डाउन हो जाता है. जैसे कि आपने एग्जांपल देखा है कि अगर हम वाटर में सैंड को मिक्सअप करते हैं और छोड़ देते हैं कई टाइम के लिए, आप मानिए कि 2 घंटे 3 घंटे के लिए, तो उसके पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे. मतलब आपको अज्यूम करना है एक ऐसा डायग्राम जिसमें हमने वाटर लिया हुआ है, जिसमें हम पोर कर रहे हैं सैंड को, तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ये यहाँ नीचे एक जगह बैठ जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा. नाउ स्टूडेंट्स, टॉकिंग अबाउट स्कैटरिंग, अगर यहाँ पे हम देखते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट फेनोमेना यहाँ पे किस केस में ऑकर हो रहा है, तो ट्रू सॉल्यूशन नहीं स्कैटर करते हैं लाइट्स को, कोलाइडल सॉल्यूशन स्कैटर करते हैं, और सस्पेंशन भी स्कैटरिंग का फेनोमेना दिखाते हैं. अब स्टूडेंट्स यहाँ आप देख पा रहे हैं, जब हमने कोलाइडल की बात की थी तो हमने बात की थी ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है.
तो ये जो मूवमेंट आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज ब्राउनियन मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। यही ब्राउनियन मूवमेंट है किसका? कोलाइडल पार्टिकल्स का। ठीक है, बेसिकली होता क्या है, जब कोलाइडल पार्टिकल्स को माइक्रोस्कोप के अंदर रखा जाता है तो ये कंटिन्यूसली मूविंग करते हुए दिखते हैं, एक जिगजैग पाथ सा बनाते हैं। तो यही जो कंटिन्यूस जिगजैग मोशन होता है कोलाइडल पार्टिकल का, इसे ही हम क्या कहते हैं? ब्राउनियन मूवमेंट। और इसे एक्चुअली में नेम किया गया था इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन के नेम पे, इस वजह से इसका नाम रखा गया ब्राउनियन मूवमेंट। बेसिकली ये जिगजैग मूवमेंट है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं जो टिंडल इफेक्ट की बात भी हमने की, क्योंकि ये सब आपके शॉर्ट नोट्स में एग्जाम में आते हैं। तो टिंडल इफेक्ट में आप देख पाएंगे जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, वो हमने अभी देखा कि इन कंपैरिजन टू ट्रू सॉल्यूशन कोलाइडल पार्टिकल्स लार्ज होते हैं। तो ये इतने लार्ज होते हैं कि स्कैटर कर सकते हैं लाइट को जो इनसे पास होगी। इसकी वजह से क्या होता है, जो पाथ ऑफ लाइट है वो विजिबल हो जाती है। तो ये स्कैटरिंग जो है बीम ऑफ लाइट की, इसे ही हम क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट। ओके, आप यहाँ डायग्राम देख पा रहे हैं, ये क्या है स्टूडेंट्स? ये आपका टिंडल इफेक्ट का एग्जाम्पल है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू क्लास।